स्पीड से पढ़ना है, ठीक है। या एनीवन प्लीज। देखो, जो कोई भी पढ़ेगा ना उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ठीक है। जितना आपका आवाज आपकी कान में जाएगा ना तो उतना आपका स्ट्रोंगर होगा, मतलब आपको ज्यादा जल्दी पिकअप होगी वो चीज, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि गलती से डरना नहीं है, यहाँ पे कोई गलती हो जाएगा तो कोई इतना वो नहीं बात है, ठीक है। या कंटिन्यू कंटिन्यू एनीवन। Hello. या Yes, sir. रीड Anesthesia करना है। package. ओके, रीड करो, हाँ। Anesthesia package includes following: usual pre-operative and post-operative visits, anesthesia care during procedure, administration of anesthesia fluid and/or blood, the usual monitoring services, example ECG, temperature, blood pressure, oximetry, capnography, and mass spectrometry. Anesthesia codes are used for general anesthesia and regional field blocks. Who can use anesthesia codes? Anesthesiologist, CRNA. Surgeons do not use anesthesia codes. They use 47 if they administer anesthesia. Why anesthesia is used? To relieve pain or manage pain, for life functional, for resuscita- resuscitation, for unconscious patient. General anesthesia is inhaled and or intravenous administration. Regional, regional or field blocks, three types. Spinal tap, that is in the spine, one shot with a shorter needle. Epidural, in the spine, larger needle, continually administered via cannula. Peripheral nerve block, PNB, provides anesthesia only to the location being operated on. Other type of anesthesia administration not coded for anesthesia sessions. Section: local or topical, bundle in surgery package, self-control, arterial line, moderate conscious sedation, Swan gauze monitoring. Relative value guide, RVG, list all CPT anesthesia code and their values. American Society of Anesthesiologists, ASA, rates by relative value guide. RVG determines the amount RVG determines the amount of provider will receive for the administration of anesthesia based upon the anesthesia code and other factors. RVG formula: B time M modifying factor, M for modifying factor, total units, conversion factor, payment for anesthesia. Determine the time every 15 minutes equal 1 unit of time. 15 minutes for 15 minutes 1 unit, 30 minutes 2 units, 45 minutes 3 units, 1 hour 25 minutes 5 units, 1 hour 50 minutes 6 units, 1 hour 4 units, 1.75 hours 7 units, 2 hours 8 minutes. Anesthesia time reporting begins. Anesthesiologist begins to manage the patient in or before surgery. That is preoperative. Continues throughout procedure, during procedure. Ends. The patient is no longer under care of anesthesiologist.
after surgery or post-operative. Okay, very good. Okay, so you have to increase your little bit speed. Increase will be beneficial. Okay, no problem. This speed is okay, but Okay. increase, if you are able to increase the speed, then it will be more beneficial. Okay, no problem. So first thing, गाइडलाइन, एनेस्थेसिया गाइडलाइन, ठीक है। तो एनेस्थेसिया का पैकेज जो होता है ना, तो उसमें क्या क्या अंदर ही बंडल होता है वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से रह जाता है क्या क्या अंदर होता है, इंक्लूड होता है, मतलब कि जो भी एक सीपीटी होगी एनेस्थेसिया की, इसमें से कोई भी एक, तो इसमें ये सारा चीज होगा वो अंदर ही इंक्लूड होगा, है ना। तो फर्स्ट थिंग क्या है, प्री ऑप एंड पोस्ट ऑपरेटिव विजिट, ठीक है। तो एक एक विजिट जो होती है ना ऑपरेशन के पहले मतलब के प्री ऑप, और ऑपरेशन के बाद में मतलब के पोस्ट ऑप, तो वो इसके अंदर ही बंडल होती है एनेस्थेसिया पैकेज के अंदर, ठीक है। यूजुअल प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप विजिट जो होगा वो बंडल होगा। फिर दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया फ्लूइड्स एंड और ब्लड, है ना। तो थोड़ा सा ब्लड चढ़ाता है ना, या फिर एनेस्थेटिक फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वो भी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनेस्थेसिया का सीपीटी का कोड में ही बंडल हो जाता है, उसके लिए कुछ एडिशनल नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन भी आता है, तो काफी लोग गलती कर ही बैठते हैं, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया फ्लूइड्स एंड और ब्लड, ठीक है, वो बंडल ही होता है। फिर लिखा है कि एनेस्थेसिया केयर ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के दौरान जो भी एनेस्थेसिया का रिलेटेड एक्टिविटी होगा वो इसके अंदर ही होगा, वो कोड में बंडल्ड ही होगा, ठीक है। फिर यूजुअल मॉनिटरिंग सर्विसेज, तो जब एनेस्थेसिया देता है ना, तो ये सब चालू ही रहता है, ईसीजी, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीमेट्री, कैप्नोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर होता है वो, और वो भी इसका पार्ट एंड पार्सल ही है एनेस्थेसिया का सीपीटी कोड का। तो ये सारी चीजें जहाँ पे जो लिखी है ना, वो सारी क्या होती है, इसके अंदर का कोई भी कोड होगा ना, तो उसके अंदर ही इंक्लूड होगी, उसके लिए कुछ सेपरेट अलग से सीपीटी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनेस्थेसिया पैकेज। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, या गुड। उसके बाद में है कि एनेस्थेसिया कोड्स आर किसके लिए, ये जो है सीपीटी 00 100 01 999 वो किसके लिए होगा, है ना। तो ये यूज करना है ना मुझे ये वाली सीपीटी, तो मुझे क्या चाहिए, एग्जाम जो क्वेश्चन होगा ना उसमें या तो जनरल एनेस्थेसिया मिलना चाहिए, या फिर रीजियोनल और फील्ड ब्लॉक्स ऐसा करके दिया जाएगा ना, तभी हम ये सीपीटी यूज करेंगे 00 100 to 01 999, ठीक है। तो ये माइंड में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि जनरल एनेस्थेसिया या तो होना चाहिए, या फिर रीजनल और फील्ड ब्लॉक ऐसा मेंशन होना चाहिए, तभी हम 00 100 to 01 999 वाली सीपीटी यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो सीपीटी है वो कौन यूज कर सकता है, तो वो भी हमारा क्लियर होना चाहिए। तो कौन यूज कर सकता है, पहला तो ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट, ठीक है, जिसने एमडी किया है एनेस्थेसियोलॉजी में, 4 साल का पढ़ाई होता है वो किया है, वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, तो वो यूज करेगा, या तो फिर सीआरएन होना चाहिए, सर्टिफाइड नर्स एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। ये दो में से कोई होगा ना, तो ये 00 100 से 01 999 वाला यूज करेगा, है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजिस्ट ने किया है, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज किया है, तो वो ये सीपीटी यूज कर ही नहीं पाएगा, है ना। कोई बंदा कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिस्ट है, तो वो ये वाली सीपीटी यूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो रिजर्व है किसके लिए, एनेस्थेसिया में जिसने स्पेशलाइजेशन किया है उसके लिए ही है, ठीक है। तो ये एकदम माइंड में क्लियर कट होना चाहिए कि कौन यूज करेगा। तो दो ही क्या ऑप्शन है हमारे पास में, क्या है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और सीआरएन है, तो उसके साथ में ये सीपीटी या जा सकती है, बाकी किसी के साथ में नहीं जाएगी। कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो भी होगा ना वो नहीं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उसके साथ में ये नहीं जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब ये गाइडलाइन है कि सर्जन्स डू नॉट यूज एनेस्थेसिया कोड, है ना। तो सर्जन का एग्जांपल मैंने दे दिया ना, कार्डियोलॉजिस्ट है और नेफ्रोलॉजिस्ट है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, वो सारे सर्जन कहलाते हैं। तो वो बाय चांस एडमिनिस्टर तो कर सकते हैं, है ना, एडमिनिस्टर एनेस्थेसिया करेंगे अपनी ऑपरेशन में, तो क्या करेंगे, ये वाली सीपीटी नहीं यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, जो अपनी सर्जरी की सीपीटी होगी ना 10,000 to 60,000 वाली सीपीटी, उसके साथ में 47 लगाएंगे, है ना। बाकी ये सीपीटी 00 100 to 01 999 तो यूज होगी ही नहीं सर्जन के साथ में,
है ना। तो सर्जन जब भी एडमिनिस्टर करेगा तो हमें ये याद आना चाहिए 47 मॉडिफायर। ठीक है। अब ये है कि भाई क्यों यूज किया जाता है एनेस्थेसिया, किसके लिए होता है। तो एनेस्थेसिया किसके लिए होता है, पेशेंट को पेन महसूस ना हो, है ना, पेशेंट शांति से टॉलरेट कर पाए ऑपरेशन, तो इसके लिए होता है। टू रिलीव पेन, मैनेज पेन, फॉर लाइफ फंक्शन, फॉर रिससिटेशन, फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है। तो ये जो जनरल एनेस्थेसिया है ना, तो उसको दो तरह से दिया जा सकता है। एक है हमारा इनहेल्ड होता है, मतलब कि सांस के अंदर में दे दिया जाता है, वो इनहेल्ड होता है। और दूसरा होता है इंट्राविनस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो जनरल एनेस्थेसिया का दो मेथड है, इनहेल्ड एंड और इंट्राविनस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि वेइन के अंदर, इंट्रा मीन्स विद इन और वीनस मतलब वेइन, उसके अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये जनरल एनेस्थेसिया है। फिर रीजियोनल फील्ड ब्लॉक का तीन टाइप का होता है। तो सबसे पहला है स्पाइनल टैप। ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइन में एक शॉट दिया जाता है, शॉर्टर नीडल, मतलब कि नीडल का डायमीटर जो होगा ना वो छोटा होगा। ठीक है। थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा होगा। फिर एपिड्यूरल इन द स्पाइन, लार्जर नीडल कंटिन्यूअली एडमिनिस्टर्ड वाया कैन्यूला। ठीक है। तो यहाँ पे नीडल का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है। स्पाइन में ही दिया जाएगा एपिड्यूरल। और फॉर एग्जाम्पल ये इसका कहाँ दिया जाता है, तो सी सेक्शन याद रख लेना है। ठीक है। सी सेक्शन में एपिड्यूरल होता है। उसके बाद में है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, पीएनबी। तो यहाँ पे जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है ना, सपोज पेल्विक रीजन में हो रहा है, तो खाली पेल्विक रीजन को ही नम करना है, तो उसके लिए ये होगा, है ना। सपोज घुटने का हो रहा है, नी का हो रहा है। ठीक है। तो नी को नम करना है, तो नी के ही रीजन को नम करने के लिए पेरिफेरल नर्व ब्लॉक होगा यूज। ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जनरल एनेस्थेसिया, रीजनल फील्ड ब्लॉक। हेलो। Yes. या Yes, sir. या थोड़ा थोड़ा बोलना है, क्योंकि क्या है कि नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आप सुन पा रहे हो नहीं है। तो बीच बीच में मैं पूछूंगा, तो आपको रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ देना है और अनम्यूट कर देना है अपने आप को। ओके। तो उसके बाद में है कि अदर टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन नॉट यूज्ड, नॉट कोडेड फ्रॉम एनेस्थेसिया सेक्शन। तो ये सारी यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है ना, तो वो उसके लिए हम ये सीपीटी यूज नहीं करेंगे। कौन सी, 00 100 to 01 999, है ना। तो इसमें से कोई भी ये है उसके लिए ये सीरीज सीपीटी की यूज होगी ही नहीं। लोकल टॉपिकल बंडल्ड इन सर्जिकल पैकेज, मतलब कि सर्जरी के पैकेज होता है ना, उसमें ही बंडल होता है। तो लोकल टॉपिकल के लिए हम यूज नहीं कर सकते। सेल्फ कंट्रोल दिया गया है, तो उसके लिए भी 00 100 01 999 सीपीटी यूज नहीं होगी। आर्टीरियल लाइन मॉनिटरिंग नहीं होगा। ठीक है। स्वान गेंस मॉनिटरिंग वो भी नहीं होगा सीपीटी एनेस्थेसिया का। और मॉनिटर्ड एंड कॉन्शियस सीडेशन, ठीक है, मॉडरेट कॉन्शियस सीडेशन, उसके लिए भी एनेस्थेसिया का सीपीटी माने 00 100 to 01 999 नहीं यूज होगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में रिलेटिव वैल्यू गाइड, है ना, आरवीजी, शॉर्ट फॉर्म इसका है आरवीजी। तो ये बेसिकली क्या है कि आरवीजी होता है ना, उसके बेस पे जो एनेस्थेटिस्ट होगा या सीआरएन होगा ना, उसको पेमेंट मिलेगा, है ना। हर एक एनेस्थेसिया की सीपीटी की एक पर्टिकुलर आरवीजी वैल्यू भी होगी। ठीक है। तो उस वैल्यू के हिसाब से वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या सीआरएन जो होगा ना, उसको जिस तरह काम किया होगा उतना पेमेंट मिलेगा उसको, है ना। तो आर रिलेटिव वैल्यू गाइड में क्या लिखा है, लिस्ट ऑल सीपीटी एनेस्थेसिया कोड एंड देयर वैल्यूज। जो भी एनेस्थेसिया की सीपीटी होगा ना, वो लिस्ट होगा और उसके सामने उसकी आरवीजी होगी। वो कौन बनाएगा ये लिस्ट जो होगा ना, वो ये बनाएगा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एएसए, है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा आरवीजी का पब्लिकेशन और जो भी है अपडेशन बपडेशन जो इसके लिए जिम्मेदार है। फिर आरवीजी डिटरमाइंस, ये तो हमने बता दिया है। तो इसकी एक सिंपल फॉर्मूला है, बेस प्लस टाइम प्लस एम मॉडिफाइंग फैक्टर, है ना, BTM। ये वैसे सीपीसी में नहीं आता है, लेकिन इंटरव्यू एनेस्थेसिया में जाओगे ना तो पूछ सकते हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि कर लो। ठीक है। तो बेस प्लस टाइम प्लस मॉडिफाइंग फैक्टर, तो ये इसका फॉर्मूला है, और इक्वल टू टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है। तो टोटल यूनिट का यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन कि यूनिट मतलब कि 15 मिनट का एक यूनिट काउंट करना है। ठीक है। कम से कम 15 मिनट होगा ना तो ही उसका एक यूनिट माना जाएगा। मान लो 29 मिनट है, तो 29 मिनट का यूनिट कितना होगा, एक ही यूनिट होगा, है ना। एक मिनट भी कम है 15 में तो उसको यूनिट नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यूनिट का कैलकुलेशन करोगे ना, तो हर एक 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट का एक यूनिट माना जाएगा।
ठीक है, 15 मिनट में 1-2 मिनट भी कम है ना तो उसको फिर 1 यूनिट नहीं मानेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि 1.25 आवर्स है तो 5 यूनिट है, 6 नहीं है। ठीक है, और बाकी तो प्रोपोर्शनेटली है। 1 घंटा मतलब 1 आवर है तो 4 यूनिट, 2 आवर है तो 8 यूनिट, 1.75 7 यूनिट। ठीक है, तो ये सीपीसी में नहीं आएगा लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने में भी बहुत आसान है। एनेस्थेसिया टाइम रिपोर्टिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिगिंस when the anesthesiologist begins to manage the patient in operating room before surgery, that is pre-operatively, है ना। तो ऑपरेशन से पहले जब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मैनेज कर रहा है पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम के अंदर, तो वहाँ स्टार्ट हो जाता है, बिगिंस, है ना। कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्रोसीजर, दैट इज ड्यूरिंग प्रोसीजर, इंट्रा ऑपरेटिव, इंट्रा प्रोसीजर। ठीक है, कंटिन्यूस चालू रहता है। एनेस्थेसिया एंड्स व्हेन द पेशेंट इज नो लॉन्गर अंडर केयर ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑप, आफ्टर पोस्ट ऑप। ठीक है, तो नो लॉन्गर अंडर केयर ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, वो एंड का याद रखना है। ठीक है, एंड मतलब नो लॉन्गर अंडर केयर, और बिगिंस मतलब टू मैनेज द पेशेंट प्री ऑपरेटिवली, बस इतना याद है ना। और कंटिन्यूज मतलब थ्रू आउट द प्रोसीजर। तो भी आपका कोडिंग गाइडलाइन में या फिर एनेस्थेसिया में अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, जो भी हमने देखे थे ना, P1 P2 P3 P4, ये है ना। इसको, ये मॉडिफाइंग फैक्टर है, उसको आपको भूल जाना है। इसको एनेस्थेसिया का जो होगा ना कोडिंग, उसमें यूज होता है, तो सीपीसी में इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन आपको एकदम माइंड में रेडी रखना है। ठीक है, उसके बाद में ये है क्वालिफाइंग सर्कमस्टांसेस मॉडिफायर, लेकिन ये हमने पहले किया है, तो ये हम पहले कर लेते हैं। इक्पिक्स लेवल 2 मॉडिफायर्स, ठीक है, अपेंडेड टू एनेस्थेसिया कोड्स। तो ये 7 मॉडिफायर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे, 00 100 टू 01 999। उसके अलावा कोई सीपीटी है तो वह ये मॉडिफायर नहीं जाएगी। ठीक है, फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर का भी ऐसा ही है। अगर सीपीटी 00 100 टू 01 999 वाली है तो लगा सकते हैं, कोई बाकी की दूसरी सीपीटी के साथ में ये मॉडिफायर नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वालिफाइंग सरकमस्टेंस मॉडिफायर या फिर सीपीटी। ठीक है, पहले मॉडिफायर यूज करते थे, अभी शायद नई बुक में ये मॉडिफायर वर्ड नहीं है, क्वालिफाइंग सरकमस्टेंस ऐसा करके दिया है। ठीक है, तो ये 4 सीपीटी है वो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या है, 99100, उसमें क्या लिखा है, एक्सट्रीम एज, और इनटू ब्रैकेट दिया है कि लेस देन 1 ईयर और ग्रेटर देन 70 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो पेशेंट अगर 1 साल से कम है एज, और या तो फिर 70 से ऊपर है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। और ये भी क्या है, एड ऑन सीपीटी है ना। तो मतलब कि पहले तो कभी जाएगी ही नहीं। ठीक है, एड ऑन सीपीटी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ना कि प्राइमरी सीपीटी होनी ही चाहिए, है ना। तो प्राइमरी सीपीटी इसकी कौन सी होगी, 00 100 टू 01 999, उसमें से ही कोई होनी चाहिए। बाकी कोई अगर प्राइमरी है तो नहीं होगा, मतलब कि गलत होगा। मतलब कि देखो, कॉम्बिनेशन वाइज आपको बताना है सही है या गलत है, सही है या गलत है। करेक्ट। ओके। करेक्ट। करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग हो गया है ना, करेक्ट नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। है ना। ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये अपनी इंटेग्यूमेंट्री की सीपीटी है ना। हमको क्या चाहिए, एनेस्थेसिया की ही सीपीटी चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, रॉन्ग। 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 करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी इस तरह से रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिखाई देता है ना, तो फटाक से उसको हटा देना है, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 99100 है, एक्सट्रीम एज माने यंगर देन 1 ईयर और ग्रेटर देन 70 ईयर्स होगा ना, तब हम सोचेंगे इसको यूज करने का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेशेंट का एज है एग्जैक्ट 1 ईयर है ना, एज इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है, या तो फिर एग्जैक्ट 70 ईयर है, तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ ये 99100। अगर पेशेंट का एज ये है 1 साल या तो फिर 70 ईयर, दो में से कोई भी एक एज्यूम कर लो आप,
तो क्या ये एप्लीकेबल है? Yes, sir. नो। Yes. ठीक है, नहीं कर सकते। ओके, वी कैनॉट यूज 99100। क्यों नहीं कर सकते? यंगर देन 1 ईयर मतलब कि एटलीस्ट एक दिन छोटा होना चाहिए एक साल में, है ना। लेस देन 1 ईयर मीन्स एटलीस्ट 1 डे शॉर्ट शुड बी देयर। ठीक है, और ग्रेटर देन 70 मतलब 71। ठीक है 70 ईयर के ऊपर एटलीस्ट एक दिन होना चाहिए तो मैं यूज करूंगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली 1 ईयर है या फिर एग्जैक्टली पेशेंट का एज 70 है तो भूल जाना है, इसको यूज करना ही नहीं है। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे काफी लोग Yes. गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो मैंने क्लियर कट वर्ड में लिख के दे दिया है कि एक साल में कम से कम एक दिन का डिफरेंस होना चाहिए, कम होना चाहिए। और 70 ईयर है तो ऊपर होना चाहिए, मतलब कि 70 ईयर के ऊपर एक दिन हो जाना चाहिए, तब यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा है कि 4 ऐसी सीपीटी है जिसके साथ में 99100 हम नहीं लगाएंगे। वो कौन सी सीपीटी है वो याद रखेंगे। ठीक है, तो 326 होता है, फिर 561 होता है, 834 होता है। ठीक है, और 836, ये 4 सीपीटी है ना, उसके साथ में 99100 का कॉम्बिनेशन गलत है। ठीक है, तो ये सीपीटी प्राइमरी में नहीं जा सकती 99100 के साथ में। ठीक है, तो सब लोगों को पढ़ना है। ये सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोरी में इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। तो जो भी चीजें मेमोरी में इंटीग्रेशन करवाऊंगा ना मैं, वो आपको सबको एक एक बार पढ़ना होगा। तो अपना टर्न बाय टर्न पढ़िए, स्टार्ट कीजिए आस्था से आस्था। हेलो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पढ़िए एक बार सेंटेंस जो हाईलाइट किया है वो। Hello. या आप पढ़ लीजिए, हाँ ठीक है। 99326. Sorry. 00326 00561 00834 00836 is not used with 99100. ओके, वेरी गुड। या प्रीतम? Yes, sir. 00326 00561 00834 00836 is not used with 99100. ओके, वेरी गुड। या नेक्स्ट प्रियंका और सैली, एनीवन? 00326 00561 00834 00836 is not used with 99100. ओके, परफेक्ट। 00326 00561 00834 00836 is not used with 99100. ओके, है ना। तो जैसे ही इसका कॉम्बिनेशन दिख जाता है ना तो ऑप्शन को हटा देंगे, है ना, तो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन भी करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये गाइडलाइन दिया है कि मल्टीपल प्रोसीजर ड्यूरिंग वन एनकाउंटर। तो इसमें क्या लिखा है? व्हेन मल्टीपल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड अंडर द सेम एनेस्थेटिक, डू नॉट रिपोर्ट बोथ प्रोसीजर्स, ओनली रिपोर्ट द हायर वैल्यूड सर्विस फॉर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही एडमिनिस्ट्रेशन एक बार किया है एनेस्थेसिया का, और उसके अंदर कुछ दो चीजें होती है, एक ऑपरेशन 1 और एक दूसरा है ऑपरेशन 2। है ना, तो ऑपरेशन 1 का भी एनेस्थेसिया का सीपीटी कोड अलग है और ऑपरेशन 2 का भी एनेस्थेसिया का सीपीटी अलग अलग है। लेकिन दोनों हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेशन में एक ही बार यूज किया है, एडमिनिस्टर किया है। तो जो बड़ा वाला होगा ना, जिसकी वैल्यू हायर होगी, वही यूज करेंगे, मतलब कि उसका ही एनेस्थेसिया का कोड यूज हो जाएगा, बाकी का बंडल हो जाएगा। जैसे हम होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो थाली आपने ऑर्डर किया है तो पानी तो साथ में ही मिलेगा, एक गिलास, है ना। वो बात अलग है कि आपको बिस्लरी बिस्लरी स्पेशल टाइप का चाहिए तो उसका बॉटल अलग से ऑर्डर करते हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर खाना खाने की जाए तो पानी अंदर होता ही है जन बाय एंड लार्ज। तो इस तरह का सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है समझने के लिए। तो क्या लिखा है? सारा डिलीवर्ड हर बेबी वाया सी सेक्शन। ठीक है, तो ये सी सेक्शन के लिए एनेस्थेसिया देना ही पड़ेगा। ठीक है,
At the time of delivery, the doctor observed that Sarah had a dermoid cyst and the doctor decided to remove the dermoid cyst at that time. ठीक है, तो डर्मोइड सिस्ट करके एक छोटी मोटी चीज होती है, तो उसने देखा कि भाई अभी सी सेक्शन का ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको भी निकाल ही देते हैं, रिमूव कर देते हैं. द रिमूवल ऑफ द डर्मोइड सिस्ट इज लेस कॉम्प्लेक्स and we can confirm this by using RVG. So we would simply code only C section and the removal of the cyst would be bundled and not coded, है ना. तो C section के लिए जो एनेस्थेसिया दिया है ना, बस उसका ही हम कोड करेंगे, ना कि डर्मोइड सिस्ट रिमूवल के लिए जो एनेस्थेसिया का दूसरा सीपीटी होगा ना, वो नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये सर्विस छोटी मोटी चीज है और इसके अंदर बंडल ही हो जाएगी. ठीक है, क्लियर है? ये गाइडलाइन क्लियर है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए. देखो, यहाँ पे पेशेंट को क्या करना है, सी सेक्शन से डिलीवरी होनी है ना. तो अब सी सेक्शन को करना है तो फिर एनेस्थेसिया देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो एनेस्थेसिया दिया है, सी सेक्शन हो रहा है, और मीनवाइल क्या हुआ, फिजिशियन ने देखा कि डर्मोइड सिस्ट भी है ना. तो डर्मोइड सिस्ट उसने फिजिशियन ने रिमूव कर दिए, लेकिन डर्मोइड सिस्ट रिमूवल के लिए स्पेशल एनेस्थेसिया तो दिया ही नहीं है ना उसने, फिजिशियन ने. एनेस्थेसिया किसके लिए दिया था? सी सेक्शन करने के लिए. ठीक है, तो उसमें ही काम किया उसने. डर्मोइड सिस्ट रिमूवल के लिए कोई स्पेशल एनेस्थेसिया तो दिया नहीं है. ठीक है, तो एक जो सी सेक्शन वाला जो कोड होगा ना एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन का, बस वही करेंगे, ना कि डर्मोइड सिस्ट रिमूवल का एनेस्थेसिया का सीपीटी कोड लगाएंगे. क्लियर है अब? यस सर. ठीक है, Yes. तो मतलब कि खाली सी सेक्शन जो एनेस्थेसिया वाला होगा ना, उसमें काम चल जाएगा. ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना होता है. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करना है ना, तो उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन इन स्मॉलर पार्ट, है ना. तो उसमें क्या करना है कि जहाँ पे सेंटेंस एंड होता है ना, वहाँ पे रुक जाना है, और क्या क्या काम की चीजें हैं वो सेपरेट करना है. ठीक है, और उसके बाद में हमें उसके रिलेटेड जो भी माइंड में मेमोराइज किया है उसको साइड में लिखना है. ठीक है, और फिर देखना है कि आंसर क्या होगा, ABCD में देखना है फिर. ठीक है, तो ये पहले सेंटेंस कोई पढ़ो, एंड पे रुक जाना है, यहाँ पे रुक जाना है. ठीक है, ये इतना पूरा पढ़ना है, पढ़ो. An anesthesiologist provides general anesthesia for a 72-year-old patient with mild systemic disease who is undergoing a ventral hernia repair. यस, वेरी गुड. ओके, तो दिस शुड बी द स्पीड. ओके, तो इसमें क्या है कि देखो, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वर्ड आया है, मतलब क्या हुआ, कौन सा मॉडिफायर हम यूज करेंगे, कौन सा कर सकते हैं यूज? ए. गुड, वेरी गुड. ओके, तो मैंने साइड में ए लिख लिया. ठीक है, फिर जनरल एनेस्थेसिया दिया है, तो ऑब्वियसली हम सीपीटी यूज करेंगे 00100 01999. फिर एज कितना है, 72-year-old पेशेंट, तो मतलब क्या हुआ, 99100 लगा 991. सकते हैं. ठीक है, तो इसको साइड में रख लेंगे. ठीक है, उसके बाद में मिल रहा है कि माइल्ड सिस्टमिक डिजीज, तो इसका कौन सा होता है, फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर माइल्ड, P2, है ना. तो P2. मैंने P2 साइड में रख लिया है. ठीक है, तो इतना तीन चीज मुझे साइड में रखना है, और ये किसके लिए हो रहा है, तो वेंट्रल हर्निया रिपेयर के लिए हो रहा है. ठीक है, ओके. अब पूछ रहा है रियल क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू रिपोर्ट द एनेस्थेसिया सर्विस. तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कैसे रिपोर्ट होगा. ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है कि ये तीन चीजें मेरे आंसर में होनी चाहिए, है ना. तो देखो, ए है, तो ये मेरे पास होना चाहिए क्वेश्चन में. तो ए कहाँ पे है, नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ना ABCD में, तो इसको निकाल देंगे. अगर कहीं पे भी चार में से कहीं पे भी नहीं है तो हटा देंगे. ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेंगे उसका. ठीक है, अब मुझे पता है कि ये होना चाहिए 99100. तो कहाँ पे है, यहाँ पे है एक, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ नहीं है. ठीक है, तो ये मैं निकाल दूंगा. ठीक है, D तो हट गया. ठीक है, तो अब कितने रह गए ऑप्शन, ABC रह गए. ठीक है, अच्छा, अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि ये जो क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंस है ना, ये 4 CPT 99100, तो ये तो हमने देखी, लेकिन ये रह गई ना. ठीक है, तो 99116 क्या है, यूज ऑफ टोटल बॉडी हाइपोथर्मिया. तो 116 का हमें क्या याद रखना है, माइंड में कीवर्ड याद रखना है, हाइपोथर्मिया. ठीक है, हाइपोथर्मिया मतलब कि टेम्परेचर लो करना. ठीक है, हाइपो मीन्स डाउन और थर्मिया मीन्स टेम्परेचर. ठीक है, तो 116 माने 99116 माने हाइपोथर्मिया, इतना याद रखना है. 99135 माने हाइपोटेंशन, इतना याद रखना है. और 99140 मतलब इमरजेंसी सर्विसेज, है ना. इमरजेंसी सर्विसेज मतलब कि इसको अगर वो सर्विस नहीं दिया गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, ऐसी सर्विसेज. ठीक है, तो ये चारों कोड हमें याद रखना है. और ये चारों सीपीटी क्या है, एड ऑन सीपीटी है.
ठीक है। तो मतलब कि पहले तो कभी लगा ही नहीं सकते ये सीपीटी, है ना, उसके पहले क्या चाहिए, प्राइमरी चाहिए, और प्राइमरी भी यहाँ पे कौन सी होगी, 00100 to 01999, उसमें से ही कोई होगा ना, वही प्राइमरी एक्सेप्टेबल होगी, बाकी कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि ये जो 4 सीपीटी है ना, उसके साथ में ना तो हम फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर यूज करेंगे और ना तो हम एक पिक्स लेवल 2 मॉडिफायर, ये वाले जो है ना वो नहीं यूज कर सकते। ठीक है। तो समझ में आया, ये जो है क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंस, उसके साथ में फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर या एक फिक्स लेवल 2 मॉडिफायर यूज नहीं करना है। नहीं करना है मतलब कि अगर ऑप्शन में किया गया है तो ऑप्शन गलत है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, क्लियर बी भी रॉन्ग। है ना। Yes. तो सी गलत हो गया। अब मेरे पास कौन सा है, 2 ही चॉइस है ना। तो 2 में से भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो मैंने ये पढ़वाया है, तो अब कौन सा होगा, आंसर बता दो। ये तो आप लोग एक एक बार पढ़ाई है ना सब लोगों ने। B option. हाँ, तो बी ऑप्शन है ना। तो अब हम बुक में देखेंगे कि ये मैचिंग है कि नहीं है। तो 832 का जो है डिस्क्रिप्शन, वो उसमें ये मिलना चाहिए। ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा रीडिंग का देखना है। ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो कि आप 832 जो है ना, उसका थोड़ा अंदर से स्टार्ट हो रहा है, वेंट्रल एंड इंसिजनल हर्निया, लेकिन 830 जो है इसके ऊपर वो यहाँ से स्टार्ट है, मतलब ये गैप कम है ना। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन बना के। देखो ये गैप इतना छोटा है और ये बड़ा है ना। तो इस तरह की जो सीपीटी होगी ना, उसको क्या बोला जाएगा, इंडेंटेड सीपीटी, है ना, इंडेंटेड। इंडेंटेड यहाँ पे लिखने का थोड़ा दिक्कत है। ठीक है। तो इसको रीड कैसे करना है, इस तरह से, ये इसका पेरेंट कहलाएगा। तो पेरेंट को जो स्टार्ट होगा ना, वहां से लेकर के एक सेमी कॉलन आएगा ना, वहां तक यही रखना है। ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया, यहाँ पे स्टॉप करना है और ये फिर लगा देना है। ठीक है। तो 832 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, कोई पढ़ो, कैसे होगा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन 832 सीपीटी का। Anesthesia for hernia repair in lower abdomen, ventral and incisional hernia. यस, वेरी गुड। ओके, तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया है ना। तो ये हमारा सही भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेंट्रल हर्निया का ही दिया गया है ना। तो इस तरह से ये आंसर हमारा सही है, परफेक्ट है, वेंट्रल हर्निया का है। ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। दूसरा देखो, पढ़ो। ओके, तो सेकंड एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए, कोई भी एक बंदा स्टार्ट करो, रीड करो। सेंटेंस पूरा होने पे रुक जाना है। ठीक है। सेंटेंस जहाँ पे पूरा होता है ना, वहां रुक के कुछ काम की चीज है तो साइड में लिख लेना है। ओके, तो देखो क्या है। हेलो। Yes, sir. या पढ़ो पढ़ो यार, कोई भी एक पढ़ो, ज्यादा टेंशन मत लो। बोल रहा हूँ ना, पढ़ना है यहाँ पे। Tina is a 70-year-old patient with severe hypertensive disease. ओके, तो यहाँ रुक गए हम, है ना। तो 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है, तो मतलब 99100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, नहीं। नहीं लिख सकते, नहीं लिख है ना। सकते। मैंने ऑलरेडी बताया इनके 1 ईयर और 70 ईयर एग्जैक्ट है तो नहीं लिखना है। ठीक है। तो 99100 तो होगा ही नहीं। ठीक है। और इसके बेस पे देखो कौन सा निकल जाएगा, ये ए निकल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे लगा दिया है, तो ये तो वैसे ही निकल गया। और ये क्या है, सीवियर हाइपरटेंसिव डिजीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या साइड में रख सकता हूँ, P3. P3 या P4, है ना। P3 या P4. P4 दोनों हम साइड में रखेंगे, जो भी ऑप्शन होगा अंदर ऑप्शन में वो हम ध्यान देंगे, है ना, या मतलब माइंड में हम रखेंगे कि P3 भी जा सकता है, P4 भी जा सकता है, ऐसा। ठीक है। अब आगे देखिए। She underwent bilateral cataract surgery under general anesthesia.
ओके, तो यहाँ पे बायलेटरल कैटरेक्ट सर्जरी ऑपरेशन हुआ है और अंडर जनरल एनेस्थेसिया, मतलब कि एनेस्थेसिया सेक्शन हम यूज कर सकते हैं। जनरल एनेस्थेसिया जहाँ पे भी होगा वहां पे सीपीटी जाएगी, 00100 01999 में से कोई भी जाएगी, लेकिन कैटरेक्ट सर्जरी वाली जाएगी। तो कैटरेक्ट सर्जरी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज कैटरेक्ट? बेसिक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कैटरेक्ट मींस क्या होता है? क्लाउडीनेस ऑफ द आई, है ना, क्लाउडीनेस ऑफ द आई लेंस। ठीक है, तो इसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखो। Dr. Joe, the anesthesiologist, performed the anesthesia. ओके, तो यहाँ पे भी रुक जाना है। ठीक है, डॉक्टर जो कौन है? एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, है ना, जिसने ये परफॉर्म किया है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मतलब क्या क्या रख सकता हूँ साइड में? ए, है ना, तो ये मैंने लिख लिया। फिर देखो, Prior to induction of anesthesia, Dr. Joe completed a pre-op visit and documented a detailed history, detailed exam, and low complexity MDM on this new patient. How would ओके, you तो report? या हाउ वुड यू रिपोर्ट द डॉक्टर जोस सर्विस, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये निम्न तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करके कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। ये में जो होता है ना, डिटेल हिस्ट्री, डिटेल एग्जाम और कॉम्प्लेक्सिटी एमडीएम, इस तरह से तो सारा डॉक्टर जो ने किया है और न्यू पेशेंट ऐसा दे करके कोशिश किया है कंफ्यूज करने की कि ईएनएम का साथ में लगा देंगे ऐसा करके, है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि डॉक्टर जो कौन है? एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, तो वो ईएनएम का कोड यूज करेगा ही नहीं। वो क्या करेगा? 00100 01999 यूज करेगा। इतना दिमाग में रखना है ना। तो जहाँ पे भी एनेस्थेसिया के साथ में अगर ये है, मतलब कि ईएनएम के कोड है, तो वो ऑप्शन हटा देंगे। तो वैसे भी ये तो हट गया है 9911 की वजह से, लेकिन ये कोड क्या है? ईएनएम का है, तो वैसे भी हट जाएगा ए, है ना। अब देखो ए और ये मेरे पास होना चाहिए, है ना। तो ए तो कहीं पे भी नहीं है, एबीसीडी में से कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हटा देंगे क्योंकि नहीं है एबीसीडी में, तो कोई टेंशन नहीं है। अब P3 या P4 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है? P2 है, तो ये तो वैसे भी निकल गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, P2 P3 मतलब P3 P4 कुछ भी नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे P3 है और यहाँ पे भी P3 है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप आंसर आसानी से बता दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, एक गाइडलाइन दिया है ना, कि जो एड ऑन कोड होता है क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंस, उसके साथ में मॉडिफायर नहीं लगेगा। तो इसके बेस पे यहाँ पे देखो इन्होंने 59 लगा दिया है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? यही होगा 00142 P3, है ना। ये क्या है कि क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंस की एड ऑन सीपीटी की है, इसके साथ में मॉडिफायर नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे लगाया तो गलत हो गया, तो आंसर हमारा ये होगा। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो कि इंडेंटेड सीपीटी है और आगे से हमें पेरेंट से स्टार्ट करना होगा। तो ऊपर गए और ये आ गई। तो 00142 का डिस्क्रिप्शन पूरा कैसे होगा? इनेस्थेसिया फॉर प्रोसीजर्स ऑन आई लेंस सर्जरी, है ना। तो मतलब कि लेंस, आई की लेंस की सर्जरी हो रही है, मतलब कि कैटरेक्ट के साथ में इसका पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर सही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को प्रॉपरली हमें क्या करना है कि इस तरह से ब्रेक करना है, और जो भी हमारे काम की चीजें होगी उसको हम जो मेमोराइज किया है उसके बेस पे इस तरह से राइट अप कर लेंगे, और फिर इमीडिएटली हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मेथड रहेगी थ्रू आउट द सीपीसी पैटर्न। ठीक है, जहाँ पे भी जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें से क्या करेंगे, कुछ चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, वो क्या क्या याद रखना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा ही नहीं, खाली प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको पूछूंगा बार बार, तो ऑटोमेटिकली काफी सारा आपका ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से करोगे तो दो चीज होगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही हमारा गोल है। ठीक है, 70% पासिंग मार्क है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि हमारा टारगेट जो है वो कितना है? 85 to 90। ठीक है, मिनिमम 85 का टारगेट लेके ही चलना है हमको। ठीक है, तो इसके जो 3 सेट होते हैं एनेस्थेसिया के,
तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, आज एक पहला सेट करूंगा, तो आपको ये पहले सेट में जो 10 क्वेश्चन है ना वो आपको करना है। ठीक है, तो करके मुझे कल आपको फीडबैक बताना है। ठीक है, और टाइम ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, गलत हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेथड आपको यही यूज करनी है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन में जो मेथड बताई ना वही करनी है ना। लेकिन वो कब करोगे, जब आप फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर और गाइडलाइन और हिकपिक्स लेवल 2 मॉडिफायर वो जब एक बार कर लेना और उसके बाद में करना। ठीक है, 10 क्वेश्चन, और फिर हम देखेंगे कि कैसे आपका क्या रहा, मतलब कितना टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ढूंढ नहीं पाए या गलत ढूंढा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत होगी ना तो थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होगा, बाद में सेटल हो जाएगा। क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनीवन? No. Yes, sir. Clear. No? Okay, then I will share this note also, or whatever I have written in notepad, I will be sharing these everything with you, and as well as I will be sending 10 questions on anesthesia set 1 that you need to do. Okay, tomorrow we will continue with another chapter, that is integumentary. Okay, so but before that integumentary we will complete this 16th number of page. Okay, modifier. So each and every modifier we will cover. So we have to remember each and everything, whatever is given on page number 16, that we have to remember. Okay, clear? Yes, clear. Okay, then bye.